A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. You know very well from yesterday we have to make a two video of accountancies. Out of them, first video which are related to the theoretical parts of the chapter number 8, that is issue of debenture, as well as the second video which are related to the numerical part of the chapter number 8, that is accounting for debenture capital. So before starting a numerical topic of the chapter number 8, that is accounting for debenture, that is issue of debenture, first of all I want to revise some of the important theoretical points which are already discussed in the last video. You can see that in the last video we discussed lots of theoretical topics related to the debenture. The first one we discussed what is debenture, what are the features of debenture, as well as we discussed the difference between the bonds and debenture. And you can see that debenture is a instrument which shows the acknowledgement of debt by the companies and which are issued under the seal of the company. It contains the contract for repayment of the principal amount as well as the payment of date of the principal amount as well as the rate of interest which are payable on the debenture, which are half yearly, annually or quarterly. So all the agreements which are related to the debenture, which are related to debt capital, will be pre-decided by the company. So in fact, debenture is a second and very important instrument for a company to arranging a fund. And in the last video you can see that the most of the important topic, that is the issue of debenture. And for the numerical point of view, first of all you have a proper knowledge about the what is the meaning of issue of debenture. Issue of debenture is just like a issue of share. As you can see that if you are talking about the issue of share, so with the help of the issue of share, company arrange a fund from the public, as well as with the help of the issue of debenture, company can also arrange the fund from the public but in the form of loan. So that's why company will record these transactions in the books separately. And you can see that issue of debenture can be of the three types. The first one is for cash, second one for cash other than for consideration other than cash, number 3 as a collateral security. So डिबेंचर बेसिकली तीन पर्पस के लिए इशू किया जा सकता है. फॉर अरेंजिंग अ फंड, इट मीन्स फॉर अरेंजिंग अ कैश. सेकेंड, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इट मीन्स कंपनी इशू अ डिबेंचर not for the cash, for purchasing of some assets, for purchasing of another business, some as like as a issue of share. जैसे आप शेयर में देखते थे कि शेयर दो पर्पस के लिए इशू होता था, फॉर कैश के लिए या फिर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए. उसी तरह से डिबेंचर भी दो तरह से इशू हो सकता है, कैश के लिए भी एज वेल एज फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए. यानी डिबेंचर को हम इशू कर सकते हैं कैश के लिए, पैसे के लिए भी, और कैश के अलावा भी कंसिडरेशन के लिए. फॉर एग्जाम्पल, if a company wants to purchase some assets but he does not have a money, so in this situation company can issue a debenture in payment of the purchase of the assets. यानी अगर कंपनी कोई एसेट खरीदना चाहती है और उसके पास प्रॉपर पैसा नहीं है तो ही कैन इट कैन इशू अ डिबेंचर टू द सेलर. एज वेल एज इफ अ कंपनी वांट्स टू परचेज ऑफ अनदर बिजनेस, अगर कंपनी किसी दूसरे कंपनी का बिजनेस परचेस करना चाहती है, सो सिचुएशन में भी वो क्या कर सकती है, डिबेंचर को इशू कर के बिजनेस को परचेस कर सकती है. और इसके सिचुएशन में सेम वही कंडीशन होती है जैसे कि आप इशू ऑफ शेयर के केस में लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था. उसी तरह से इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर इज दैट एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी. सो प्लीज, this topic is new for you because company cannot issue its share as a collateral security, but company can issue its debenture as a collateral security. What is the meaning of collateral security? Collateral security means additional security to mortgage, as a mortgage
इन देयर फॉर देयर लोन्स। सपोज कंपनी ने 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख, 50 लाख फॉर सम ऑफ द एनी अदर अमाउंट के लिए लोन लिया। अब लोन लिया, सो यू नो वेरी वेल, लोन के लिए उसे सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। तो कंपनी ने अपनी कोई लैंड या बिल्डिंग एज अ सिक्योरिटी उस पर रख दिया, बट बैंक उस सिक्योरिटी से सेटिस्फाइड नहीं है। सो सिचुएशन में कंपनी अपने डिबेंचर को भी लोन के एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में मॉर्गेज कर सकती है। यानी अगर कंपनी ने टाइमली उस लोन का पेमेंट नहीं किया तो कंपनी के पास से वो लैंड भी जाएगी एज वेल एज वो डिबेंचर भी उस बैंक का माना जाएगा। सो इसमें हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो बेसिकली इफ वी आर फोकसिंग ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सो हमें डिस्कस करना है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, issue of debenture for consideration other than cash, and issue of debenture as a collateral security. And thereafter if we are talking about the issue of debenture for cash, so you know very well issue of share की अगर हम बात करें तो issue of share can be issued at a par or at premium. Company cannot issue its share at discount, but company can issue its debenture at discount. ये बात आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगी यहाँ पे कि कंपनी अपने शेयर को पार पे और प्रीमियम पे इशू कर सकती है बट डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। बट डिबेंचर जो हो सकता है वो तीनों सिचुएशन में इशू हो सकता है। कंपनी अपने डिबेंचर्स को पार पे भी इशू कर सकती है, प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है और डिस्काउंट पे। ये प्रीमियम पार क्या है? सपोज कंपनी की शेयर की वैल्यू है 100 रुपए और उसी तरह से डिबेंचर की वैल्यू क्या है? 100 रुपए। तो कंपनी अगर 100 रुपए का डिबेंचर 100 में इशू करती है, विच इज नोन एज द इशू ऑफ डिबेंचर एट पार। 100 रुपीज का डिबेंचर 105 पे इशू करती है, सो दिस इज नोन एज द इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। सेम एज द अगर कंपनी शेयर को 100 रुपए डिबेंचर 100 रुपए का है लेकिन उसे इशू करती है 90 पे, सो दिस इज नोन एज द इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। सो इफ वी कंपेयर दिस टॉपिक विद द प्रीवियस चैप्टर, so we can find that company cannot issue share at discount but company can issue its debenture at discount. okay, और इस पार्ट पे तो हम लोग डिस्कस कर ही लिए और कोलेटरल सिक्योरिटी पे हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है द जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू द इशू ऑफ डिबेंचर। एंड इशू ऑफ डिबेंचर का कौन सा पार्ट? दैट इज फॉर कैश। पहले हम लोग इस टॉपिक पे क्लियर डिस्कशन करेंगे, फिर हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे एंड देयर आफ्टर इस पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म। यानी इशू ऑफ डिबेंचर इन्हीं 3 टॉपिक्स पे डिस्कशन करता है और आने वाले 4-5 वीडियोस में हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देना है, क्योंकि ये चैप्टर जो है जस्ट सेम एज द इशू ऑफ शेयर की तरह ही है। यही बात पार, प्रीमियम और डिस्काउंट में, तो पार प्रीमियम में आपने डिस्कस किया हुआ है लास्ट चैप्टर में, डिस्काउंट हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, तो ये एक नया चीज है। फॉर कंसिडरेशन कैश हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, चाहे परचेज ऑफ एसेट्स के लिए बिजनेस, ये सेम एज इट इज इशू ऑफ शेयर की तरह ही कंडीशन होता है और न्यू टॉपिक आपका बनता है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो आपके लिए नया क्या है इस चैप्टर में? द फर्स्ट वन इज इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी एंड इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। सो इन दोनों टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है। बाकी कुछ अदर पॉइंट्स रहते हैं। सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कैश बुक ऑफ अ बैंक अकाउंट, so this rule will be same applicable in the issue of debenture as same as in like in the previous chapter, that is issue of share. तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी कुछ बातें मैं आपको एकदम क्लियर बता दे रहा हूँ, जिसको लेकर आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि बैंक अकाउंट है, कैश बुक है, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, वैसे ही करेंगे। सॉरी। अब हम लोग कुछ बातें और कर लेते हैं। वो कुछ बातें ये है कि शेयर जब पार पे इशू होता है, प्रीमियम पे इशू होता है, डिस्काउंट पे इशू तो होता नहीं है। शेयर पार पे इशू होता है, प्रीमियम पे इशू होता है, तो कंपनी कैन आस्क द वैल्यू ऑफ द शेयर इन द इंस्टॉलमेंट। यू नो वेरी वेल, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी नोन एज द एप्लीकेशन, सेकेंड इंस्टॉलमेंट विल बी नोन एज द अलॉटमेंट एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट विल बी नोन एज कॉल्स। ओके, बेसिकली 3 कॉल्स होती है, 3 इंस्टॉलमेंट होती है। यानी कंपनी को अगर शेयर का 100 रुपए मांगना है तो वो 100 रुपए एक साथ नहीं मांगती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स में डिवाइड कर लेती है। तो क्या सर जब कंपनी डिबेंचर भी इशू करेगी तो चाहे पार पे करे, चाहे प्रीमियम पे करे, चाहे डिस्काउंट में करे, तो भी वो इंस्टॉलमेंट को यूज करेगी? यस। यानी कंपनी जैसे शेयर इशू करती है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स की तरह, वैसे ही वो अपना डिबेंचर भी इशू करती है। बट नई चीज बस यही है कि कंपनी शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती बट डिबेंचर को इशू कर सकती है। ये बात आपको माइंड में रखनी है। बाकी सारी चीजें सेम एज इट इज है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स।
अब रही बात कुछ बातें और, वो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। सो पहले हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, देयर आफ्टर sorry, issue of debenture at premium, and number third, issue of debenture at discount. So let's start the today's session. So the topic is issue of debenture at par. So you know very well, first of all, same as that, like in the share, first of all company receive application, same as it is when company issued the debenture at par और at premium और at discount, तो कंपनी को भी जब भी वो डिबेंचर इशू करेगी सबसे पहले उसे एप्लीकेशन मनी ही मिलेगा, जैसे कि शेयर में मिलता है। तो उसको लेकर भी आपको डाउट नहीं करना है, यानी जब कंपनी सबसे पहले डिबेंचर इशू करेगी तो उसे भी पहले क्या मिलेगा, एप्लीकेशन। बट हम लोग एंट्री क्या करते थे शेयर के केस में, द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बट यहां पर होगा डिबेंचर एप्लीकेशन, ये याद रखना है आपको। सर ये तो बहुत सिंपल है, नरेशन विल बी being application money received on certain debenture on a certain call. Okay, so application receive हुआ, so the entry will be bank account debit to debenture application. Okay, second, you know very well, शेयर एप्लीकेशन को कहाँ ट्रांसफर करते थे, शेयर कैपिटल में, बट यहां पर आपको क्या करना है, डिबेंचर एप्लीकेशन को कहाँ ट्रांसफर करना है, डिबेंचर कैपिटल में। सो द सेकेंड एंट्री विल बी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ओके सर ये तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, अगर आपने शेयर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो एंट्री भी लगभग सेम है, बस नाम का फर्क है। थर्ड, उसके बाद कंपनी क्या करती थी, अलॉटमेंट कॉल करती थी शेयर के केस में, वैसे ही कंपनी क्या करेगी डिबेंचर के केस में, क्या कॉल करेगी, अलॉटमेंट कॉल करेगी। सो द एंट्री विल बी, वहां होता था शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहां एंट्री होती है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ओके ओके, नंबर 4, डिबेंचर अलॉटमेंट जब रिसीव करती है तो सो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। सर ये तो एकदम सेम वही है, बट नाम बस बदल जा रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि और कुछ भी नहीं है इस पूरे टॉपिक में। नंबर 5, कंपनी कॉल करती थी, एंड कॉल के केस में यू नो वेरी वेल क्या एंट्री पास होती थी, इन केस ऑफ द कॉल शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसी तरह से यहां पे भी क्या एंट्री होगी, डिबेंचर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, एंड आफ्टर दैट कंपनी रिसीव अ calls, and you know very well in case of the share calls may be classified into the two categories or three categories, that is first call, second call, final call। उसी तरह से डिबेंचर में भी हो सकता है, डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू डिबेंचर, डिबेंचर सेकंड कॉल टू डिबेंचर, डिबेंचर फाइनल कॉल टू डिबेंचर, हो सकता है, ऐसा कोई डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। बट मैं यहाँ पे आइडल एंट्रीज पास कर दे रहा हूँ, सो दैट इज known as the issue of debenture at par. So you can see that the entries which are par at the time of issue of debenture at par, first of all company received the application on debenture, thereafter application money will be transferred to the debenture capital. Third, company called allotment money on debenture, thereafter company receive allotment money on debenture, thereafter company called the call money on debenture, and thereafter receive the call money. So this is very easy, you can see that. So this is the entries which are passed at the time of issue of debenture at par. सर इसी के साथ साथ प्रीमियम का भी बता दो, कोई डिफरेंस नहीं है। इन केस व्हेन अ कंपनी इशू डिबेंचर एट प्रीमियम, issue of debenture at premium means when a company issued a debenture more than the face value, यानी जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है फेस वैल्यू से ज्यादा, तो सिचुएशन में यू नो वेरी वेल जिसके साथ भी कैप वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, प्रीमियम, वहां पर आप एंट्री पास करते हो, यू नो वेरी वेल। जैसा हम लोग करते आए हैं, बैंक के साथ कभी भी प्रीमियम की एंट्री नहीं पास होती, प्रीमियम की एंट्री हमेशा किसके साथ होती है, अगर एप्लीकेशन पे है तो इस एंट्री के साथ होती है, अलॉटमेंट पे है तो इस एंट्री के साथ होती है, कॉस्ट होती है तो इस एंट्री के साथ होती है। ओके, सो वही सेम वही तरीका है, वही प्रोसीजर, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। सो उसको लेकर आप कभी भी डाउट मत रहिएगा।
when a company issued its debenture at premium, so in this situation company passed the journal entries, that is debenture application, allotment और कॉल्स, जिसके साथ भी प्रीमियम हो, जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ है इन सारी चीज़ों को। डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट और कॉस्ट डेबिट और अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर, and when a company issues its debenture at premium, so in this situation the special account will be opened, that is security premium reserve, same as in the last chapter जब कंपनी शेयर इशू करती थी प्रीमियम पे, सो द एंट्री विल बी पास। तो प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी कि जब कंपनी शेयर इशू कर रही है पार पे चाहे प्रीमियम पे, सो एंट्रीज में कोई चेंजेस नहीं है, उनके नेचर में कोई चेंजेस नहीं है, बट चेंज क्या है नेम में। आपको चेंज क्या दिख रहा होगा, ये नाम जो हम नेम यूज कर रहे हैं बिफोर द इंक्रीज। ओके, यानी जब कंपनी शेयर इशू करती है प्रीमियम पे तो भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ओपन होता है, और जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है प्रीमियम पे तो भी वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ओपन होता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। सो प्लीज नोट डाउन ऑल द टॉपिक्स, all the entries in your copy. Thereafter we discuss the next entry, when company issued its debenture at discount. So in this situation, issue of debenture at discount, ये नया टॉपिक है बट इसको भी आपको लेकर ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेंशन ले ले कि सर ये नया टॉपिक है इसको कैसे डील करना है, कुछ नहीं है। जैसे प्रीमियम की एंट्री इन सब के साथ होती है, वैसे ही डिस्काउंट की एंट्री भी इन्हीं सारी के साथ पास होती है। जैसे आपने देखा अभी प्रीमियम की एंट्री क्या हुई थी, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट और डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट और डिबेंचर कॉस्ट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सेम उसी तरह से यू कैन सी द एंट्रीज रिगार्डिंग द इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। सो उसमें भी आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि व्हेन कंपनी इशूड द शेयर एट प्रीमियम, तो 100 रुपए का शेयर कितने पे इशू होता है, 120 पे। सो कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹20। सो इन दिस सिचुएशन कंपनी ओपन अ प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और ये अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। यू नो वेरी वेल, यानी जब कंपनी प्रीमियम पे इशू करती है शेयर तो प्रीमियम अकाउंट को क्या करती है, क्रेडिट करती है, बिकॉज इट इज अ प्रॉफिट। बट when a company issued its share, its debenture at discount, so you can see that 100 रुपए का शेयर कितने पे इशू होता है, 90 पे। सो इन दिस सिचुएशन यू कैन सी दैट 10 रुपए का क्या होता है कंपनी को, लॉस, और लॉस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। सो उसी तरह से आपको याद रखना है कि प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होता है और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होता है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। Okay, so when company issue of debenture at discount, so in this situation company pass the entries as follows: a discount may be with application, may be with allotment, may be with calls. It is not, if in any question डिस्काउंट अमाउंट विल नॉट मेंशन कि डिस्काउंट किसके साथ है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स के साथ, तो भी आप वही लेके चलोगे, अलॉटमेंट के साथ उसको ट्रीट करोगे जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया। ये सारी चीजें ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर ली है, और वो सारी चीजें सेम एज इट इज एप्लीकेबल होती है डिबेंचर के केस में, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। सो व्हेन ए कंपनी इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, सो इन दिस सिचुएशन द एंट्री विल बी डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट जिसके साथ भी डिस्काउंट हो, और कॉल्स टू डिबेंचर, और जब प्रीमियम पे इशू होता है लिखते हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बट यू नो वेरी वेल डिबेंचर इशू किस पे हो रहा है, डिस्काउंट पे। डिस्काउंट इज अ लॉस, और लॉस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट, और डेबिट में क्या होगा, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। सो सिंपल। इट मींस अगर कंपनी ने
प्रीमियम पे इशू किया शेयर या डिबेंचर, तो प्रीमियम अकाउंट क्रिएट हुआ किस नाम से? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से। लेकिन जब कंपनी ने डिबेंचर इशू किया डिस्काउंट पे, तो उस सिचुएशन में एक अकाउंट ओपन हो गया, दैट इज डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। चाहे शेयर इशू करो प्रीमियम पे, चाहे डिबेंचर इशू करो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट ही होगा। बट अगर कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है प्रीमियम पे चाहे डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे इशू करी तो आपको पता है क्या करना है, और डिस्काउंट पे इशू करना है तो उस सिचुएशन में डिस्काउंट के साथ डिस्काउंट अकाउंट को ओपन करना है, दैट इज डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। आप पूरा नाम भी लिख सकते हो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। यू विल नेम ऑफ अकाउंट दैट इज डिस्काउंट ऑन डिबेंचर और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इट इज डिपेंड ऑन यू। इसके लिए कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना है। सो बेसिकली इन टूडेज वीडियो वी डिस्कस्ड the entries which are related to the issue of debenture at par, at premium and at discount. पार और प्रीमियम का सिचुएशन वैसे ही है जैसे आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, उसमें कोई नई चीज नहीं है। रही बात नई चीज है वो डिस्काउंट। डिस्काउंट में आप लोगों ने क्या देखा, डिस्काउंट अगर इशू होता है, डिबेंचर इशू होता है डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट अकाउंट को आपको डेबिट कर देना है। जो भी डिस्काउंट की वैल्यू होगी उसे हम लोग वैसे ही बात करेंगे जैसे कि हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। ओके, सो लेट्स वी टेक द वन एग्जांपल फॉर यू। सो फॉर क्रिएटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लेट्स वी टेक अ वन मोर एग्जांपल फॉर यू, एंड दिस इज अ एग्जांपल विच आर रिलेटेड टू द इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, बिकॉज यू नो वेरी वेल हम लोगों ने इशू ऑफ डिबेंचर एट पार और प्रीमियम को ऑलरेडी शेयर के चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। सो उसमें कुछ नई चीज नहीं है जो आपको समझाई जाए या बताई जाए। आपके लिए नई चीज है वो है इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। सो लेट्स वी टेक अ वन एग्जांपल रिलेटेड टू द इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। सो प्लीज बी रेडी विद द क्वेश्चन। सो आई विल टेक अ वन एग्जांपल, roughly example for you, that is a company limited issued 4,000 6% डिबेंचर ऑफ ₹100 each at a discount of 5%। यानी कंपनी है जिसने 4,000 6% डिबेंचर इशू किए ₹100 के, ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफ 5%, not the rupees. ओके, 25 ऑन एप्लीकेशन, जिसमें एप्लीकेशन पे है ₹25, अलॉटमेंट पे है ₹25 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है दैट इज 45। ऑल द डिबेंचर्स आर वेर अप्लाइड फॉर एन अलॉटेड, ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड, pass necessary entries and show the items, as well as company incurred expense on issue of debenture ₹10,000. So please make a summary, please note down the summary of this question, and after that we will pass the journal entries. The question is, company issued 4,000 6% डिबेंचर ऑफ ₹100 each at a discount of 5%, यानी कंपनी ने 4,000 6% डिबेंचर इशू किए 5% डिस्काउंट पे, जिसमें एप्लीकेशन था 25, अलॉटमेंट था 25 एंड कॉस्ट था 45। सो यू कैन सी दैट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर इज, द टोटल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इज 5 4 6 8 95। कितने रुपए का डिबेंचर है? 100, उस पर डिस्काउंट कितना है? 5%, और डिस्काउंट पे ज्यादा पैसा मिलता है कम मिलता है? सर कम मिलता है। सो 100 का 5% डिस्काउंट हो गया तो वैल्यू कितनी आएगी? 95 आएगी। और इस क्वेश्चन में ये भी नहीं बताया कि डिस्काउंट किसके साथ है, एप्लीकेशन के साथ है, अलॉटमेंट के साथ है, फर्स्ट कॉल के साथ, फाइनल कॉल के साथ है। सर जब कुछ नहीं दिया रहता तो हम लोग क्या लेके चलते हैं? सो इन दिस सिचुएशन वी टेक दी डिस्काउंट ऑफ प्रीमियम मनी विथ अलॉटमेंट। यानी जब क्वेश्चन में क्लियर ना हो कि डिस्काउंट या प्रीमियम किसके साथ है तो हम लोग एंट्री किसके साथ पास करते हैं? अलॉटमेंट के साथ पास करते हैं। और इसमें एक और नई चीज दे दी है, दैट इज एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10,000, जो कि हम लोग उस पर भी डिस्कस करते थे, दैट इज व्हेन कंपनी इशूड इट शेयर एंड इनकर्ड एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर। सो उसकी भी वही एंट्रीज होंगी, बट वहां पे क्या हो जाएगा?
शेयर अकाउंट ओपन होता था, यहाँ पे कौन सा अकाउंट होगा, डिबेंचर अकाउंट ओपन होगा। सो कुछ चीजें क्या, मैक्सिमम चीजें प्रीवियस चैप्टर से रिलेट करती हैं, सो आप लोग उसको नोट कर लो, फिर मैं इसके सॉल्यूशन पे चलता हूँ। सॉल्यूशन में जर्नल एंट्रीज पे। सो यू कैन सी दैट अब मैं क्वेश्चन पढ़ दिया, आपको उसकी क्वेश्चन की समरी दे दी, अब उसके बाद आई विल पास दी जर्नल एंट्रीज। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू कैन सी दैट कंपनी ने 4000 डिबेंचर इशू किए थे 6% पे। सो पहली एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री विच आर रिलेटेड टू द एप्लीकेशन मनी, कंपनी को एप्लीकेशन मिलेगा। सो द फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। बट प्लीज मेक डाउन, नोट डाउन, जब जब हम डिबेंचर वर्ड लिखेंगे तब तब डिबेंचर के साथ जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो मैंने आपको अभी समरी ऑफ द क्वेश्चन में बताया था, वैसे तो हम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन, बट यू नो वेरी वेल डिबेंचर के साथ एक टर्म है 6%, वो हमेशा लिखा जाएगा। फर्स्ट एंट्री विल बी डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट to 6% डिबेंचर एप्लीकेशन, एंड यू नो वेरी वेल एप्लीकेशन मनी कितने से है, दैट इज 25, एंड हाउ मच डिबेंचर 4000, so 4000 multiplied by 25 according to the question, and amount will be 1 lakh, and thereafter you know very well we transfer the application money to the debenture, so the next entry will be 6% debenture application account debit to 6% debenture। हर जगह हम 6% को मेंशन करेंगे with the same amount, that is 1 lakh and 1 lakh। thereafter company make allotment, कंपनी allotment कॉल करेगी, and you know very well कंपनी जब भी allotment कॉल करेगी तो उसके साथ डिस्काउंट होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में डिस्काउंट किसके साथ है ये क्लियर नहीं था। सो द थर्ड एंट्री इज 6% डिबेंचर allotment account debit discount on 6% debenture to 6% debenture। How much debentures? That is 4000। okay, so 4000 multiplied by allotment money कितने से है, मैंने आपको पहले ही नोट डाउन कराया कॉपी में, that is 25, so 4000 into 25 that is 1 lakh, and डिस्काउंट कितने रुपए का है 5, so 40,000 डिबेंचर पे 5 रुपीज के हिसाब से कितना रुपए डिस्काउंट होगा, that is 20,000। सो एक्चुअल डिबेंचर मनी कितनी है, 1,20,000 रुपए की, लेकिन 1 लाख रुपए उसमें अलॉटमेंट का ही मांगा गया है, 20,000 रुपए नहीं मांगा गया है, क्योंकि कंपनी ने डिबेंचर किस पे इशू किया है, डिस्काउंट पे। तो जब भी डिस्काउंट पे हम किसी डिबेंचर को इशू करेंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा ना। सो यही बात आपको याद रखनी है। ओके, सो ये कैसे आया, दैट इज 4000 डिबेंचर इंटू 25, एंड दिस विल द 4000 मल्टीप्लाइड बाई 5। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ऐसा आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बट आपको अपने दिमाग में रखना है, और टोटल की वैल्यू ऐड कर दोगे तो 1,20,000। नेक्स्ट वन इज अलॉटमेंट रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अलॉटमेंट। कितना रिसीव होगा, 1,20,000 और 1 लाख। कंपनी ने डिस्काउंट पे इशू किया तो कंपनी को खाली कितना रुपए मिलेगा, 1 लाख रुपए, 1,20,000 थोड़ी ना मिलेगा। ओके, सो दिस एंट्री, सो यू कैन सी द एंट्रीज from the application to the allotment, so please note down in your copy, and thereafter we will move to the entries related to the cost। thereafter company make a call, so the next entry is entry number 5th, that is 6% debenture first and final call account debit to 6% debenture, how much debenture, 4000 multiplied by 45, and the value is 1,80,000। okay, next company receive a first and final call money, so the entry will be bank account debit to
6% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, नरेशन वही रहेगा जैसा आप यूज करते आए हो, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, वैसे ही कॉल और कॉल को ड्यू करना और कॉल को रिसीव करने की एंट्री, बस उसमें शेयर वर्ड की जगह डिबेंचर वर्ड यूज करना है। एंड लास्ट एंट्री, द एंट्री इज रिलेटेड टू द expense on issue of debenture. So the entry will be debenture issue expense account debit to bank. And what is the amount of debenture issue expense? That is 10,000. So this is a so simple solution of this question. Okay, so you can see that today we make a discuss on the topic which are very important regarding the issue of debenture, that is issue of debenture at for cash, that is the issue of debenture at par, at premium or at discount. And we also solved a very important practical problem which are related to the issue of debenture at discount. So I hope today we cleared all the topics very easily. If you have any doubt or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot and good day.